So now we are discussing the back of the leg, जिसको हम calf बोलते हैं. Calf. In the calf, the muscles are arranged in 3 layers: superficial, intermediate, and deep. Rather, superficial, deep, and deepest. The deepest is tibialis posterior. Now, firstly, I'll draw that. So this is tibia. You are looking from the posterior aspect. This is medial malleolus. So this is the medial side. Here is the fibula. Then this fibula. This is the lateral malleolus. Okay. You are looking at these two bones, tibia and fibula, from the posterior aspect. From the lateral side of the femur comes a muscle which gets inserted here. But here is a line obliquely running from medial to lateral side on the tibia. That is called as soleal line. Soleal, S-O-L-E-A-L, soleal line. Above the soleal line is this muscle which comes from the lateral side of the lateral epicondyle of the femur and gets inserted on the tibia, and its name is popliteus. Popliteus. On the soleal line is the muscle which is inserted is soleus. Soleus. Okay. Covering the soleus, the outermost muscle of the calf takes origin from the epicondyles, from the medial and lateral epicondyle, the medial head and the lateral head of gastrocnemius. So gastrocnemius will take origin, the medial head and lateral head, from the epicondyles. From the lower part of the femur, posteriorly, medial head from medial epicondyle, lateral head from lateral epicondyle. This muscle is gastrocnemius. So this gastrocnemius will be the most superficial muscle. It will be covering all of them. And down here is talus, then is calcaneus. So if you are looking at the calcaneus from the side, this is the posterior surface of the calcaneus. Calcaneus is the heel bone, the posterior part of your heel. That what you feel is the calcaneus. On that calcaneus, now soleus also takes origin from the upper 1/4 of the posterior surface of fibula. Soleus has two heads. The tibial head arising from the soleal line on the posterior surface of tibia. Above the soleal line is insertion of popliteus. And there is one more head of the soleus which is from the posterior aspect. Of fibula. Upper 1/4. The soleus has two heads. Soleus doesn't cross the knee joint. Gastrocnemius crosses the knee joint because its origin is from femur. So it will have a slight flexion action on the femur, not a strong flex. This gastrocnemius which is there, मतलब अगर देखोगे तो gastrocnemius ऐसा medial head, lateral head,
and goes down and gets inserted on the calcaneus. आप साइड से अगर देखोगे तो साइड से this is the tendon of gastrocnemius getting inserted in the middle 1/3 of the posterior surface of calcaneus. This bone what I have drawn is calcaneus. Okay, so in the lower middle 1/3 of the calcaneus, the gastrocnemius and soleus together they get inserted. These two muscles they unite with each other and together they get inserted here. This tendon is called as tendoachilles. Achilles tendon. Very strong tendon. आप आपके बॉडी में literally you can feel this one tendon. आप के स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, सडनली आपने फुटबॉल खेला, दौड़े भागे, दूसरे दिन उठने के बाद जो हील के बैक में, कितने लोगों ने पेन एक्सपीरियंस किया है? तो हील के बैक में आप कभी दौड़े ही नहीं लगते हैं, किया है ना? और ऐसा फिर 1-2 स्टेप लेते वक्त शुरुआत में ऐसा वो थोड़ा सा पेन होता है, फिर आपकी माँ ने बोला रहेगा गर्म पानी में पैर डाल के बैठो। कितने लोगों ने वो कार्यक्रम किया है, गर्म पानी में पैर डाल के बैठो, फिर वो बिकॉज ऑफ योर यंग एज इट हील्स. The tendoachilles tendinitis, which happens at people of my age, if it happens at any point, very difficult to heal. Young age, the healing is fast. So this is tendoachilles. These two muscles, तो ये gastrocnemius के अंदर ऐसा सोलियस रहेगा, ओके? उसके नीचे gastrocnemius के नीचे सोलियस रहेगा, and then they together they unite. These two muscles together are called as triceps surae. Triceps surae क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो अपर लिम्ब में बाइसेप्स है, लोअर लिम्ब में बाइसेप्स है. अपर लिम्ब में ट्राइसेप्स है, लोअर लिम्ब में भी ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स surae. ओके, बिकॉज 2 हेड gastrocnemius के और एक सोलियस, ऐसे करके 3 मसल. Of course, soleus के भी 2 heads है, but it is together one muscle, and 3 of them, these 2 heads of gastrocnemius and soleus, their main action, this tendoachilles is one of the thickest tendon in the body. Its main action is plantar flexion. जिम में जाके जो ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो काफ मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग. तो there are weights kept on the shoulder, and then people do this exercise, plantar flexion. Okay? Rather, whenever you start walking from a standing position, inert position, it is these muscles which will start moving the body from the inertia. Of these 2 muscles, gastrocnemius is white muscle, soleus is red muscle. Gastrocnemius is white muscle and soleus is red muscle. Okay, red muscle soleus का और एक characteristic feature. This soleus has lot of blood, venous sinuses inside it. Okay, which are connected to the venous system of the lower limb. So whenever we walk, the soleus pumps this blood into the venous system, gives a boost to the venous system, because upper head face neck के veins को कुछ issue नहीं है, उनको बस नीचे आना है, gravity. हाथ भी आप लोग आधा टाइम ऐसे करते रहते हैं, तो हाथ को भी कुछ issue. पैर को continuously they have to push against the gravity to go to the heart, and therefore soleus, other name for soleus is peripheral heart. Peripheral heart. तो जितना आप चलोगे उतना पंपिंग होगा, उतना venous return अच्छा होगा. तो इसके लिए whenever a patient is lying down on the bed for 1 day, 2 days, 3 days, not moving, paralyzed, तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है और काफ मसल को ऐसे बिकॉज विद पेरिफेरल हार्ट वहाँ से
पंप करके ब्लड को हार्ट की तरफ भेज देता है. So this muscle is very important. Soleus. Soleus is red muscle. It is called as a bottom gear. अभी bottom gear, top gear क्या है समझो. कार कितने लोगों ने चलाई है, चलाने को आता है हाथों तक. वेरी गुड. विदाउट लाइसेंस चलाते हो आप लोग. तो पहला जो गियर होता है गियर नंबर 1. ओके, बाकी लोग जो कार नहीं चलाते हैं और एसटी बस में बैठे जहाँ महाराष्ट्र लाल पिवड़ी में कितने लोग बैठे हाथ ऊपर करो. आता लाल परी, हाँ जस्ट पिवड़ा पट्टा ठीक. तो लाल परी जब चालू होती है तो वो बॉटम गियर करता देखा है ना. और स्पेशली गाड़ी चल रही है और सडनली घाट चालू होता है. घाट, फिर घाट में गाड़ी, दैट इज बॉटम गियर. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गियर. बॉम्बे के लोगों को ये समझेगा नहीं. आप लोग माजलेनी लोग का तुम्हें वॉल्वो मधनं ट्रॅव्हल करता समजता भी नहीं वो कौन सा गियर में. बट हमारे मराठी माणूस लाल परी में बैठे, दैट इज बॉटम गियर. दैट इज सोलियस. तो सोलियस इज द वन विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट. सॉरी माजलेले बोली, श्रीमंत लोग. बट एक दिन वो बैठो तो भी आपको सोलियस गैस्ट्रोक्लेमस का याद आया. बट इधर बॉम्बे में भी लोकली कभी भिवंडी इधर उधर लोकल बस नहीं, जहाँ जाएंगे लोकल से जाएंगे, जितना भी धक्का खाएंगे. लेकिन तो सोलियस इज द वन विच इज द बॉटम गियर. तो जब आप खड़े हैं ऐसे ही और फिर जब चलने को चालू करते हैं तो ये सोलियस इज द वन विच इज वेरी पावरफुल, विच pushes our body and puts it into motion, because वो strong है, वो बॉटम गियर है. तो फिर वो हमारी लाल परी बाद में दूसरा तीसरा चौथा गियर वो डालते, फिर वो चलने लगे बराबर. घाट आने के वो स्ट्रॉन्ग. बॉटम गियर इज स्ट्रॉन्ग. टॉप गियर इज फास्ट. बॉटम गियर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्लो. उस पर डालते हैं गाड़ी तो स्लो हो जाती. टॉप गियर इज फास्ट. परसों जो कुर्ला में एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ पे हमारी लाल परी होती तो ऐसा होता ही नहीं. इलेक्ट्रिक बस आवाज नहीं करती, वो ड्राइवर को समझा भी नहीं बस चालू है कि बंद है. वहाँ पे लाल परी होती तो आधे लोग आवाज से भागते, कोई नहीं मरता था. सो गैस्ट्रोक्लेमस इज द टॉप गियर. तो एक बार चलने लगते हैं तो देन गैस्ट्रोक्लेमस टेक्स ओवर. इट इज द फोर्थ गियर. व्हाइट मसल, रेड मसल. व्हाइट मसल इज फास्ट but gets fatigued easily. Red muscle is slow in contraction but doesn't get fatigued because of presence of myoglobin. Myoglobin होता है red muscle. Classical example of red muscle is our back muscles. ये हमारे जो बैक के जो मसल्स हैं ना, इरेक्टर स्पाइन नहीं होगा. अरे जब से आप सुबह 6 बजे, मुंबई के लोग 5 बजे, हॉस्टल के लोग 7:30 बजे उठे हो, तब से ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में. फिर आप यहाँ पे आके 3 घंटा क्लास में ऐसे बैठे हो, एटलीस्ट मेरे क्लास में. फिर आप डिसेक्शन हॉल में ऐसे खड़े हो. फिर मुंबई के लोग रात को 10 बजे तक और हॉस्टल के लोग शाम को 5 बजे तक. तो मतलब दिस मसल्स कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 7-8 hours. इरेक्टर स्पाइन, these are red muscles. Classical example of white muscle is extraocular muscles of the eye. तो इसके लिए हम लोग कोई पिक्चर देखने को गए जिसमें ऐसा बहुत ऐसा स्पीड है, गाड़ी है, और आपको आगे के सीट पे ये मिला है टिकट,
तो सडनली सब ब्लर हो जाता है ऐसे पीछे, फिर लोग ऐसे करते हैं, फिर बिकॉज दोस व्हाइट मसल्स आर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग, दे गेट फटीग। और वो स्क्रीन पे क्या होता है, जब आप आगे बैठते हो तो इधर उधर इधर उधर ऐसा ब्लरिंग होता है कभी कभी। थाई के मसल्स क्या है? quadriceps femoris, red या white? Some people have 70% white, 30% red. ये लिखो मतलब ये मैं ऐसे आपके इंटरेस्ट के लिए। They win the 100 meter because white muscle contracts fast. Some have 70% red, 30% white. They win marathons. They win marathons. इंडिया का कॉम्बिनेशन ये है। नेक्स्ट ओलंपिक्स किधर है? एनीबॉडी? क्या भूल गए आप? 4 साल अपने क्या लॉस एंजलिस पहले ना। नेक्स्ट ओलंपिक्स में आपको अगर लग रहा है कि इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, लहरा दो, कुछ नहीं होता। कैसा लहरा दो? ये कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं होता। मैं इन लोग को, ये लोग जो जाते हैं ना बेचारे ओलंपिक इवेंट में तिरंगे के साथ साड़ी के साथ ऐसा ऐसा करता है, मेरे को इनका ये कॉम्बिनेशन दिखता है कि इसके लोग जीत ही नहीं सकते। व्हाट शुड दे डू इज, वहाँ पे जाओ, भागो, जो भी फर्स्ट आएगा आएगी, अगर द्वारा मेल रनर और आपको समझा कि कोई फर्स्ट आई है तो उसको जाके गुलाब का फूल देके शादी करा के इधर लेके आओ। ये कॉम्बिनेशन से एटलीस्ट आपका बच्चा क्योंकि लोग तो बोलते हैं ना कि मैं नहीं जीता तो क्या हुआ, मेरे बेटी गोल्ड आएगी। बेटी गोल्ड नहीं आएगी, बेटी का कॉम्बिनेशन ये है। तो इंडिया कैन नेवर गेट, आपने देखा कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें हाई स्पीड रनिंग लगता है, इंडिया मार खाता है। इंडिया कहाँ पे जीतता है? इधर खड़े खड़े, इसमें इंडिया जीतेगा, चेस में इंडिया जीतेगा, ओके, रेसलिंग में वगैरह जीतेगा। बट जिधर रनिंग इन्वॉल्व है, इसके लिए आप अपना फील्डिंग देखो, अपना रनिंग बिटवीन विकेट्स देखो, लोग ऐसा मारते हैं। एक बार वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा शॉट मारा और वो भागा भी नहीं, ऐसे ही चलते थे। वो विकेट कीपर के हाथ में बॉल आया, वो सोच रहा क्या करूं। विकेट कीपर ने बोला फेंक के देखते, तो उसने फेंका, बॉलर सेंटर और लगा और वो आउट हो गया। वीरेंद्र सहवाग उसको ऐसा घूम दे, मैं क्या किया तुमने? मैं जा रहा था ना उधर तक, क्या इसका भी कुछ फॉल्ट नहीं। हमारे इंडियन फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया में भी हार रहे हैं, तो ऐसा कैसे हम लोग उधर के आपको सूर्या का फ्लैश वाज ब्रिलियंट, बट ये लोग कैसे ऐसे जंप मारते, ये करते, अपने लोग खाली भाग के ऐसे दिखा देंगे मैं भाग के गया। तो दिस इज रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट का कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में अभी फिट होना चाहिए, व्हाइट क्या है, ओके। तो सोलियस इज red muscle. Now let us talk about few muscles which are beneath these muscles. Okay? हमने ऑलरेडी एक मसल स्टडी किया है, tibialis anterior. Tibialis anterior. यहाँ पे एक मसल होगा tibialis posterior. वो रहेगा lateral half of tibia, posterior surface. Lateral half of fibula, posterior surface, and interosseous membrane. And interosseous membrane. बीच का interosseous membrane पे भी सभी वो origin ले. Time pass. Tibialis posterior. TP. Tibialis posterior. क्यों टीपी कर रहा है? तभी भी आपको याद कौन आना चाहिए? tibialis posterior. posterior. 2. It gets attached to, 2 gets attached to 2 muscles. 1 is
यहाँ से मैं इसका इंसर्शन बता रहा हूँ. It gets attached to tuberosity of navicular bone. It gets attached to tuberosity of navicular bone and sends slips to all the tarsal bones and send slips to all the tarsal bones except talus, because no muscle is attached to talus. talus को ligaments attached है, muscle कोई भी attached नहीं. So tibialis posterior is inserted on tuberosity of navicular, and it sends slips to all the tarsal bones except why? Because no muscle is attached to tuberosity of navicular. उसका origin medial half of posterior surface of medial में lateral half of posterior surface of tibia and medial half of posterior surface of and दोनों के बीच में and all that lies in between. What lies in between? ये deepest muscle. अभी क्या बचा? अभी बचे हमारे flexor hallucis longus and flexor digitorum longus. हॉलक्स कहाँ कौन से साइड पे है? ये मीडियल में नहीं लाता. फ्लेक्सर हॉलिसिस कहाँ पे होना चाहिए? और फ्लेक्सर डिजिटोरम कहाँ पे होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता. ये खास एनाटोमिस्ट के लिए ये अरेंजमेंट है, आप लोगों को छेड़ने के लिए. इस साइड पे लैटरल साइड पे होता है फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, उल्टा. और यहाँ पे होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस. So digitorum should have been on the fibula because digits laterally. और ये सारे मसल्स मीडियल मैल्यूलस के पीछे से आते हैं. सपोज ये मीडियल मैल्यूलस है. बिफोर दैट इनका सबका नर्व सप्लाई क्या रहे? टिबियल नर्व. ये पोस्टीरियरली सब टिबियल नर्व है. बट जब हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं तभी क्या बोलते हैं? टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक. टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व. और नी के नीचे, गुड़गे के नीचे, गुड़गा नोट कर रहे, दिशा किधर? गुड़गा, नी, गुड़गे के नीचे यू जस्ट राइट टिबियल. कभी टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नहीं लिखे. गुड़गे के ऊपर पार्ट ऑफ, बिकॉज इट इज स्टिल टुगेदर. वो साथ टिबियल नर्व ओनली, बट वो दोनों साथ में टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक. वो जैसे वो दोनों डिवाइड होते हैं कॉमन पेरोनियल एंड टिबियल में, तो नाउ यू कॉल टिबियल. सो muscles of the back of the leg, all of them are supplied by tibia. अभी flexor hallucis, flexor digitorum, the digitorum will be inserted on the distal phalanx of hallux, distal phalanx of digits. जो digitorum है distal phalanx of digits, distal phalanx of hallux.
इनका एक्शन फ्लेक्शन, अरे नाम में ही फ्लेक्शन, बट देन फ्लेक्शन ऑफ एंकल, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल, फ्लेक्शन ऑफ इंटरफैलेंजियल, ये एक्शन, ये दोनों, इसका विल बी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेटर टो, फ्लेक्शन ऑफ द एंकल, मेटाकार्पोफैलेंजियल, इंटरफैलेंजियल, फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स. Tibialis posterior, tibialis anterior का एक्शन आपको याद है, कल ही हम परसों ही सीखा है, याद था? मैंने तभी आपको बताया था डॉर्सिफ्लेक्शन से भी ज्यादा इन्वर्जन. Tibialis anterior is inversion, tibialis posterior also inversion. Main action is inversion. कुछ लोग बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, आपको एग्जामिनर ने ज्यादा ग्रिल किया तो बोलो प्लांटर फ्लेक्शन. मेन एक्शन इज इन्वर्जन. टिबियालिस एंड तो इन्वर्जन पे क्वेश्चन आया. ओके, इन्वर्जन पे क्वेश्चन आया अगर, तो इन्वर्जन बाय टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर and eversion by peroneus longus and peroneus tertius. Eversion by fibularis longus and fibularis longus and brevis, not tertius. Peroneus or fibularis longus, peroneus or fibularis brevis. These two muscles. So eversion by peroneus longus and brevis. Inversion by tibialis anterior and tibialis posterior. Clear? Inversion by two tibialis, eversion by two peroneus or fibularis. या तो peroneus बोलो या fibularis बोलो. Is it clear? तो यहाँ पे ये medial malleolus है और ये सारे मसल्स ओरिजिन लेने के बाद मीडियल मैल्यूलस के नीचे से जाते हैं. मीडियल मैल्यूलस के नीचे से. लैटरल मैल्यूलस के नीचे से कौन जाता है? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस. लैटरल मैल्यूलस के नीचे से कौन जाता है? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस. मीडियल मैल्यूलस के नीचे से ये जाएंगे सारे. तो पहले जाता है tibialis posterior, फिर जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम, फिर जाती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, फिर जाती है टिबियल नर्व और फिर जाता है फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस. tibialis posterior tendon, flexor digitorum. So T D A N H, Tom, Dick and Harry. Tom, Dick and Harry. Any Tom, Dick and Harry can remember this. T for tibialis tibialis posterior. D for flexor digitorum. A for posterior tibial artery. और anterior tibial artery क्या है? Thank you. Anterior tibial artery कहाँ पे होती है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ पे होती है? भूल गए? ये राजमहल जहाँ पे मैं गाता था, आप लोग नाचते थे पिछले जन्म में. एंटीरियर टिबियल आर्टरी इज इन दिस कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. वहाँ की नर्व कौन सी है? कॉमन पेरोनियल. कॉमन पेरोनियल, laterally superficial peroneal and posteriorly all muscles by tibial.
एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग जहाँ पे tibialis एंटीरियर एक्सटेंसर पोपट्यातला मुलगा खड़े रहो, आपने एप्रन नहीं पहना। नहीं, आपका नाम बोलो जोर से। मया एप्रन। तुम्हारा टी शर्ट बहुत अच्छा है लेकिन तो 4 मसल्स मयंक कौन से हैं? एंटीरियरली tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus and peroneus tertius. ओके, पिछले जन्म में 10 दिसंबर को मैंने आपको ये सिखाया था और उसका नर्व है कॉमन पेरोनियल नर्व और उधर का आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी और यहाँ का इस कंपार्टमेंट का आर्टरी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इस कंपार्टमेंट की नर्व लैटरली सुपरफिशियल, जल्दी बोलो, सुपरफिशियल, एंटीरियरली डीप पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल डिवाइड्स इनटू डीप and superficial supplies the lateral compartment, deep supplies the anterior compartment. ऐसा लगा है कि मैं कोटा में कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ इधर एनाटॉमी। Is it clear to you? इनका सबका एक्शन इज क्लियर। आज हमने इसके पहले 2 मसल पढ़े थे जिनका नाम था गैस्ट्रोक्लीमा। सो दिस इज हाउ आइडियली ना, अगर आप एग्जाम में कलर पेंसिल्स वगैरह यूज करते हो तो दिस लुक्स गुड। Gita was kind enough to give it to me, this chalks, but ये अच्छा दिखता है ऐसे। okay? पेन वो स्टैंडर्ड आई थिंक ब्लैक बोला है या ब्लू बोला है, वो चेक करो, ब्लैक बोला। पेन में कलर चेंज नहीं करने, डायग्राम में यू कैन यूज कलर पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स। Okay, so this compartment is clear. Which is the deepest muscle in this compartment? Tibialis posterior. Gets inserted on tuberosity of navicular and gives slips to all the tarsal bones except talus. It is separated by tibial nerve. Its action is inward. Then 2 muscles: flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. Digitorum longus. फ्लेक्सर डिस्टोरम दोनों डिस्टल फैलिंग्स में इनका सबका एक्शन इज फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। और एक एक्शन इनका है, बिकॉज देखो ये अगर मीडियल मैल्यूलस के नीचे से ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा फुट है और ये सब लोग टॉम डिक एंड हैरी, इसमें से भी आप जस्ट कंसर्न विद द मसल्स, ये लोग ऐसे अगर जा रहे हैं तो उनका और एक एक्शन आता है एंड दैट एक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च, बिकॉज ये आर्च को खींच रहे हैं ना। सिमिलरली पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस, देयर एडिशनल एक्शन अपार्ट फ्रॉम इवर्जन विल बी मेंटेनेंस ऑफ लैटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। तो जो मसल यहाँ पे लैटरली है उसको लैटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च का मेंटेनेंस, यहाँ पे मीडियली मतलब टॉम डिक एंड हैरी एंड इवन tibialis anterior, you can add one more action apart from their all other actions, that is maintenance of medial arch. No. So first muscle we studied was gastrocnemius and soleus and their action was plantar flexion. Gastrocnemius has an additional action, flexion of knee also. Soleus has an additional action. It is acts as a peripheral heart to pump the venous blood of the lower limb towards the heart. Okay, so with that I stop here. Thank you so much.